हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट हर एक क्लास के बच्चे के लिए है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक बच्चे के लिए कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें जो है बहुत कुछ हम समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये और भी आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं और प्लस जो है डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। But most important point doing here a cycling process of the atmospheric gases. There is the most important topic. The cycle of the main gas is found in the atmosphere is given below. The carbon cycle, oxygen cycle and carbon dioxide cycle. There is the most important for the geographical reason. There is the first here carbon cycle. The element of the carbon is present in the atmosphere in form of the carbon dioxide. The source of carbon from all living beings is the atmosphere. That is the most important. The green plants receive a carbon dioxide from to the atmosphere, which is used for making food with the help of the sunlight. This is called to the photosynthesis. By the process, the plant create of carbohydrate in the form of food. The carbohydrate thus produced by the plants are used as the food by all living beings. The carbon dioxide get dissolved in the water bodies and get collected in their form of limbs of earth. After this, the dissolutions of limestone, carbon dioxide again reaches in the atmosphere. This process is called carbonylation. Carbonylation in this is the way of carbon dioxide goes on the moving between to the atmosphere and water body of earth. There is the most important the carbonizations. And carbon dioxide produced by breathing of plant, animal, and degradations of plant animals and by burning fossil fuel like coal, petroleum and natural gas again return to back to the atmosphere. In this way, the process of receiving of carbon dioxide from the atmosphere and going back to the its form of the surface of the earth keep on the going continuously. It keeps the balance between the carbon and is a biosphere. Here show the most important diagram of carbon cycle. There is a carbon cycle here, a sun, photosynthesis producer, a plant tree, and there is a goes based to the consumers and decomposer, and the respiration here, atmospheric carbon dioxide, and goes to the producer, plant and tree. There is a cycle. And the other cycle here is goes back to the producer, a plant tree as goes to the soil and coal, oil and combination, and there is go to be a atmospheric carbon dioxide. There is the most important carbon dioxide cycle. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वायुमंडलीय गैसों की चक्रीय प्रक्रिया, यानी वायुमंडल की गैस की चक्रीय प्रक्रिया किस बेस पे आधारित होती है।
वायुमंडल में पाई जाने वाले प्रमुख गैस का चक्रण जो है नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र यानी कार्बन चक्र। दूसरा आता है ऑक्सीजन चक्र। तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र यानी कार्बन चक्र के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। देखिए ये कई मानने में जो है तीनों के तीनों गैस जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है वायुमंडल में। तो चलिए देखते हैं पहला चक्र जो है कार्बन जो है चक्र है क्या है। जैसा कि हमारा कार्बन चक्र आया है, देखिए कार्बन चक्र की विशेषताओं में क्या रखा है, कहते हैं बहुत इसकी विशेषताओं में जाते हैं। तो इसके जो है विशेषताओं को हम क्या दिया गया है उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन तत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विद्यमान होता है। कहते हैं समस्त जीवों के कार्बन का एक स्रोत जो है वायुमंडल ही माना जाता है और यहाँ से जो है हर एक जीव जो है लाभांतरित भी होता है। हरे पौधे जो है पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन निर्माण हेतु करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के रूप में तैयार करते हैं और इसके द्वारा जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के लिए करते हैं। पृथ्वी पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जल भंडारों में जो है घुल जाती है और चूने के जमाव के रूप में इकट्ठी भी हो जाती है। चूने के पत्थर के जो है अपघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल पुण्य पहुंच जाती है और इस प्रक्रिया को जो है कार्बनीकरण कहते हैं यानी कार्बनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो है कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार जो है वायुमंडल और पृथ्वी के जो है जल भंडारों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होता ही रहता है। यदि हम करें आगे, जैसे पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के श्वसन के द्वारा पौधे और जीव जंतुओं को जो है अपघटकों द्वारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जो है जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में आपस चली जाती है। इस प्रकार जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और धरातल के पुण्य वायुमंडल में आपस जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे ही कार्बन एवं जैव मंडल के बीच संतुलन बना रहता है। यानी हर एक गैस का जो है अपना वायुमंडल में अपना एक विशेष स्थान रखता है। देखिए हमारे समक्ष जो आया है कार्बन चक्र, जो कि बहुत काफ़ी आसान है, इसका बनाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डायग्राम में जो डायग्राम है यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। देखिए बहुत आसान है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण आपने बनाना है जिसमें सन को दर्शाना है। उसके बाद उत्पादक जो है पेड़ पौधों को बनाना है और उपभोक्ता जो है हमें स्वयं बनना है और घटक के रूप में जो है कीड़े मकोड़े होंगे। तो इस प्रकार जो है ये वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फिर से चली जाएगा, फिर से वही प्रक्रिया दोहराया जाएगा। दूसरी तरफ बात अगर करें हम, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। उत्पादक कहाँ से करेंगे? मिट्टी से करेंगे। अब मिट्टी में क्या होगा? कोयला, तेल आदि होंगे, उसकी दहन की जाएगी, फिर श्वसन में जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में प्रवेश करेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान जो है कार्बन चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। इससे आसान कहीं आपको मिल भी नहीं सकता। The our next topic is the oxygen cycle. The oxygen cycle also important here. The amount of the oxygen in the atmosphere is about 21%, and all living beings use oxygen present in the atmosphere for a breathing. Their oxygen is the most important for a living organism. And for the burning of the fuel like a wood, coal, gas, etc., oxygen stimulates and the carbon dioxide gas produced by their burning. There is the most important here. The main source of oxygen is the atmosphere is the plant and trees. The higher the number of trees and plants, their ability of the oxygen will be more. There is the most important, and oxygen produced through the photosynthesis by the green plant goes back to the atmosphere, and in this way a process oxygen cycle goes on continuously. Here show the most important oxygen cycle. There is a very easy is a diagram here. Oxygen cycle. That is a very simple and very useful for you. There is here a sun produce a solar energy by their photosynthesis cell. The plant and trees their use of solar energy on a photosynthesis processing and goes ways to produce here oxygen या glucose. The plant and trees are produce oxygen or glucose. There is a goes back to the heterotrophic cells, and the heterotrophic cells use and produce here carbon dioxide or water,
and it goes back to the plant of photosynthesis processing repeating. There is a very easy oxygen cycle. Note down your notebook. There is a most important and simple diagram for you. अगला टॉपिक तो दोस्तों हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है, ऑक्सीजन चक्र। देखिए ऑक्सीजन चक्र क्या है और इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में लगभग 21% है और यह समस्त जीव जंतु और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यानी आपको पता है अगर इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के सभी जो होते हैं ऑक्सीजन जो है उपयोग करते हैं। इवन कि कुछ पौधे को अगर देखा जाए तो वो भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन हर जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ। कहते हैं आप ये भी जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको पता लगाना चाहिए कि आपके आसपास ऐसा कौन पेड़ पौधा है जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जल्दी देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताता है। अपने नाम के साथ जो है आप इसको जो है मुझे कमेंट जरूर करना, अपना नाम लिख के बताना है कौन सा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए तो ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस आदि के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही काफ़ी आवश्यक है और इसके जलने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तभी तो आपको पता है कि लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम गैस हो, सबके जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो रही है और ये कई मानने में जो है लोगों के लिए खतरनाक भी सिद्ध होता है। कहते हैं वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शायद ये संभव ही नहीं है कि ऑक्सीजन उत्पन्न हो। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए पेड़ पौधे जितने हो सके दोस्तों लगाना चाहिए और पेड़ पौधों को जो है बचाने में आप अपना जो है काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हो। अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उनको मना कीजिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे आपके लिए जो है अमृत समान है, जीवन देने वाली जो है ऑक्सीजन आपको देती है। तो पेड़ पौधे को बचाना आपका सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उत्पन्न ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में वापस चली जाती है और इसी प्रकार जो है ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको डायग्रामेटिक समझना और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में क्या दर्शाया गया है। देखिए डायग्राम जो है बहुत आसान और बहुत ही इजी है। कहते हैं दोस्तों बहुत अधिक लंबा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं लेकिन अपना सिलेबस नहीं कर पाते हैं और त्रिपाण सिटी सेंटर इसी बात पे सदैव ही आपको जो है जागरूक करने की कोशिश करता है कि दोस्तों अपना सिलेबस को आप पूरा कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना सिलेबस से अधिक जान लेना आपके लिए सही भी नहीं रहेगा और आप जान भी नहीं पाओगे। कहते हैं एक पॉइंट अगर आप अधिक जान लेते हो तो इसका मतलब थोड़ी कि सारा किताब आपको जो है अच्छे से आ जाता है। इसलिए हर एक टॉपिक को जो है आपको अपना सिलेबस को देखिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि कोई भी बोर्ड जो होता है, कोई भी सिलेबस बनाता है तो वो बच्चे को जो है नज़रिया को देख के, बच्चों की समझ देख के बनाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान जो है ऑक्सीजन साइकिल है, जहाँ जो कि इससे अधिक आसान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ही आसान है। सोलर एनर्जी आपको दिख रहा होगा जिसे फोटोसिंथेसिस जो है सेल्स करती है, यानी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये या तो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं या ऑक्सीजन के फॉर्म में होते हैं। ये जो होता है हेटेरोफिल सेल्स के अंदर चला जाता है और इससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर जो है प्राप्त होती है और ये दोबारा जो है फोटोसिंथेटिक सेल में चला जाता है। तो ये बहुत ही काफ़ी आसान जो है ऑक्सीजन साइकिल का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। इतना आसान आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं अगर ये बना देते हो तो एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि ये पर्याप्त है। कहते हैं पर्याप्त होने का मतलब यही होता है कि वो पुण्य है और ज़रूरी भी है। हमें अधिक क्या हमें फालतू में लेना है, हमें जो चीज़ आसान है, सही है, हमें उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही सही है। The next important topic here are nitrogen cycle. Nitrogen cycle is the most important here. The nitrogen is an important element of the life. The amount of nitrogen gas is the atmosphere is a 78%. There is a maximum amount of present of the our atmosphere is a 98%. The main source of nitrogen are the nitrate present in a soil. From the atmosphere, nitrogen enter into the bio component through the biologically is an industry process.
Nitrogen compound formed to the plant are transferred to their animal through the food chain, and the process of transformation of nitrogen gas of the atmosphere into the nitrogen component is called nitrogen fixation. Bacteria as a decomposed derived is a plant dead animal. It is a produce a nitrogen gas and which goes to the back into the atmosphere. In this way, the cycle of nitrogen gas is completed. Here show the diagram. Here show the most important diagram, nitrogen cycle. You know that there is a very easy cycle. Here, first of all, here was to the clean soil storage pool and is a nitrate. And the nitrate has come to atmosphere storage pool of the nitrogen gas. There is a exchange to the each other. Here, atmospheric storage pool is a nitrogen gas to goes a lining fixation, and here soil storage pool interact, and here is a come to the other side nitrogen fixation by the organism, and there is a was to clean, and also refer goes to the uptake by the autotrophic plant, and the autotrophic plant here after the death. The death is the transfer to the heterotrophic animal, and after death is the decompose the soil and bacteria, algae, and this goes to the nitrogen gas. There is the dead plant and animal. There is the most important source of nitrogen. There is a most important nitrogen cycle, and the very easy. Note down your notebook for the exam view. So here is the main source of carbon is carbon dioxide gas found in the atmosphere. The main source of oxygen is the atmosphere are plant and trees. Oxygen is the use of breathing and for a burning of fuel. Nitrogen is a very strongly for a life on the earth. The main source of nitrogen is the plant or nitrate present in the this soil. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन चक्र जो कि बहुत ही आसान और जो है विस्तृत तरीका से यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन प्रत्येक जीवन का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, जिसका हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत जो है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट होते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जैव घटकों में प्रवेश कर जाती है। पौधों में ये नाइट्रोजन जो है यौगिक खाद्य श्रृंखला आहार द्वारा जंतुओं में स्थानांतरित हो जाती है। वायुमंडल का जो है नाइट्रोजन गैस के जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसके विषय में हमने बात भी किया और जाना भी। यानी वायुमंडल नाइट्रोजन गैस के नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पेड़ पौधों के सूखने और जीव जंतुओं के मरने पर जो है जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है और इससे नाइट्रोजन गैस बनती है, जो फिर से वायुमंडल में वापस चली जाती है और इस तरह जो है नाइट्रोजन गैस की चक्र पूरा हो जाता है। यानी इंसान या जीव जंतु या पेड़ पौधे मरते हैं तो आपको पता है ये धरती में ही किसी न किसी रूप में चले जाते हैं, जो कि धरती को नाइट्रोजन दोबारा से मिल जाती है। तो ये जो है नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आता है। इसी बात को अगर डायग्रामेटिक आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान डायग्राम आपके समक्ष है, जिसको आपको नोट करना चाहिए और एग्ज़ाम में जो है अपनी काबिलियत को साबित करना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए, नाइट्रोजन गैस के जो है वायुमंडल संचलन पुल के रूप में। अब ये कैसे होगा? ये होगा प्रकाश स्थिरीकरण के कारण, और दूसरी तरफ से जाएगा जीव द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण, और ये मृदा में नाइट्रोजन संचलन जो है चला जाएगा या महासागरों में प्रक्षेपण हो जाएगा। कहते हैं अगर हम ये स्वयं पोषी पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, अगर वो मृत्यु हो जाते हैं, ये मृत्यु की घटना होगी जहाँ पर विषम पोषी प्राणी स्थानांतरित होगी और मृत्यु के पश्चात जो होगा अपघटन मृदा जीवाणु शैवाल के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है और फिर से नाइट्रोजन में चला जाता है। यानी इसका अगर हम साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो आपको पता है कोई भी जीव जंतु जब मरता है तो उसमें जो है नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है और ये जो है पृथ्वी में ही दबा दी जाती है। आपने देखा ही होगा कि किसान जो होते हैं कृषि करने से पहले कोई हरा पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लगाते हैं, और आपको पता है सबसे अधिक उपयोगी किसानों के लिए होता है तो वो है दलीदार पौधे, जो दालें होते हैं फलियां वाले पौधे।
कहते हैं फलियां वाले पौधे की जड़ों में जो है नाइट्रोजन वेक्टर यानी नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोबैक्टर नाम की जो है बैक्टीरिया पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए पर्याप्त होता है। तो जो किसान समझदार हैं, जो काफ़ी अच्छा कृषि करना चाहते हैं, वो कभी भी जो है कोई दूसरा फसल लगाने से पहले जो है वो डलीदार पौधे ज़रूर लगाते हैं। या क्या करते हैं, कोई भी हरा पौधा लगा देते हैं जिसमें जो है नाइट्रोजन होती है और उस पर जो है हल चला के जो है उस पर दोबारा कृषि करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे गलने से भी नाइट्रोजन का जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक बात होती है। तो ये चक्र भी उन्हीं बातों के ओर इशारा कर रहा है। यदि कुछ बातों पर हम ध्यान दें तो ये बात हमें साफ हो गया है। कार्बन का मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल में पाई जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे होते हैं और ऑक्सीजन का प्रयोग जो है सांस लेने और ईंधन जलाने में किया जाता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है और ये पौधों में नाइट्रोजन का जो है मुख्य स्रोत के रूप में मुद्रा में उपस्थित नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था हमारा ये टॉपिक था जिसके बारे में हम कर रहे थे, और चैप्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण था जो कि अब समाप्त हो जाती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरा जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।